میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص برا سلام قبول کرے۔ 3 اگست 2026 عیسوی بمطابق 27 محرم الحرام 1446 ہجری بروز سنیچروار ڈالتے ہیں آج کی خبروں پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی بازگشت۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم چند روز میں جموں کشمیر وارد ہوگی۔ حکام اور سیاسی جماعتوں سے ملاقات متوقع۔ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انتخابی شیڈول پر حتمی فیصلہ ہونے کا امکان۔ راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں گورنروں کی کانفرنس کا افتتاح۔ جمہوریت کے ہموار کام کے لیے ضروری ہے کہ ایجنسیاں تمام ریاستوں میں بہتر تال میل کے ساتھ کام کریں۔ مرمو۔ گورنر کا عہدہ اہم ادارہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ کشمیر میں منشیات کے خطرناک حد تک پھیلاؤ کو پوری قوم کے لیے موجودہ وقت میں سب سے بڑا چیلنج۔ اس کے سدبھاؤ کے لیے اجتماعی کوششیں، حالات اور وقت کا ناگزیر تقاضا۔ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے قبل ایک باری اجتماع سے میر ویس کشمیر کا خطاب۔ سانہ سماج حال معاملات نشہ آز تام بوزمت 10 ؤری برونٹھ 15 ؤری برونٹھ کہ نشہ ہسا کیا گو زیادہ کھت زیادہ بوزان کہ سگریٹ ہسا چوان تی بوزان گوڑ پتہ ووت وقت ہے طوفان ہسا ووت شراب نوشی شراب ہسا مگر آج حالت یہ کہ نشہ کوت ووت منشیات، ڈرگز، افیم، کوکین، چرس، مینتھال، ہیروئن یہ کس بلائی چھے یس ونکن طوفان بدتمیزی پٲٹھۍ سانہِ کشیر مز پھیل کینٛہہ ؤری برونٹھ 5-6 ؤری برونٹھ علماء بیچے اس کرے کت ات پہ تم وقت اس تعداد 8 لچھ کوتا اس 8 لچھ آج ونان یم زن محققین ریسرچ آئی کرنے کہ 15 لچھ ہسا گمت مناسب 15 لچھ لڑکہ تو کور ہسا ونکن سن جموں کشمیرس اندر یم زن منشیات کس لعنتس تو وباس اندر آمت گرفتار گمت۔ مسلمانوں اس کیا کرو کیا یوتھ تام نے اس قرآن اور حدیث کی روشنی مز محاسب کرو پنن پانن یہ زانو کہ یہ جان چھو اللہ تعالیٰ سند امانت یہ جان کرن بہ ضائع کی پنس پانس ایزا دن تکلیف واتناون یس بی سند امانت ام پت کت کن سن جان ضائع گژھان کت واریاہ چھ تم یم بدنامی ہند ڈر پتہ چھن کہ گرن مز کیا حال کور جوان لکٹ بڑ ات مز ملوث گم بار بار چھس بہ ونان یہ مسلمان سن چھ عقید ایمان کہ مے چھ یتھ دنیا مز کمال حاصل کرن تر دنیا مز کمال حاصل کرن اسلام چھنس ہچناوان یہ دنیا ترٲیو نہ دنیا کریو حاصل مگر دنیا حاصل کران کران کریو آخرت خاطر تہ زیادہ راہ حاصل۔ سڑک حادثات کے متاثرین کے لیے مفت علاج ہوگا۔ حکومت نے حادثات کے متاثرین کو بغیر نقدی کے علاج فراہم کرنے کے لیے اسکیم نافذ کی۔ اسکیم چندی گڑھ اور آسام میں پائلٹ بنیادوں پر شروع، دیگر علاقوں میں جلد شروع ہوگی۔ نتن گڈکری۔ بی ایس ایف کے خصوصی ڈائریکٹر جنرل 2 روزہ دورے پر جموں پہنچ گئے۔ بین الاقوامی سرحد پر کئی علاقوں کا دورہ کر کے سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران سرحدی سلامتی اور تسلط کے تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ سرحد پار سے دراندازی کی کوششوں کا بروقت جواب دینے اور انہیں ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی۔ سیکورٹی فورسز نے کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ہائی ٹیک آلات ٹیکنالوجی کو تعینات کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے ساتھ کیرن، مسل اور اوڈی سیکٹروں میں ہائی ٹیک نگرانی کا استعمال کر رہے ہیں۔ فوج چین بھارت کے ساتھ تناؤ کو ختم کرنے کے لیے مل کر
काम करने को तैयार। हमारे दोनों लोग भाइयों और बहनों की तरह साथ चलेंगे। चीनी कौंसल जनरल कांग। पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने साफ जाहिर कर दिया कि वो बीजेपी के उसूलों पर मबनी अपनी पार्टी चलाती है। शफात, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद किया गया था न कि मुंतखब किया गया था, वो ज़ाती तौर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ हो सकते हैं, न कि बांडीपोरा का यूनिट। हम उस्मान मजीद के हिमायती थे और उनके साथ ही रहेंगे। बांडीपोरा यूनिट। कल एक न्यूज़ आई कि उस्मान साहब ने अपनी पार्टी को अलविदा किया। ये बहुत पहले कुछ महीनों से सिलसिला जब हमारी मीटिंगें चल रही थी ब्लॉक लेवल पे, हल्का लेवल पे, जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि जब हमने मीटिंगें की हर किसी की आवाज़ यही आई उस्मान साहब का, आप अपनी पार्टी को अलविदा कीजिए। क्योंकि जब अपनी पार्टी बनी उनका मंशूर जो था उस मंशूर पे वो नहीं चले। मंशूर कुछ और था, वो कुछ और कर रहे थे। हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि लोगों ने क्या फैसला आपने किया। क्योंकि लोग सीधा कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में जब इन लोगों ने बीजेपी के साथ स्टेज शेयर किए, क्लियर कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो लोगों को क्लियर हुआ ये बीजेपी की बी टीम और बीजेपी ही है। ये कुछ जगहों में चाहे श्रीनगर हो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या राजौरी पुलिस हो, वहाँ पे तो बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट उनको सपोर्ट किया। वहाँ पे नतीजा वो रहा कि हम जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वर्कर होते हैं, उसका फिर हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सब लोगों ने जो बांडीपोरा का, चाहे आम बाशिंदा हो, चाहे वोटर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे वो हल्का कमेटी हो, चाहे ब्लॉक कमेटी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे जोनल कमेटी हो, हर किसी ने उस्मान साहब को कहा कि मेहरबानी करके इस पार्टी से आप निकल जाओ, इस पार्टी को आप अलविदा करो। क्योंकि लोग बिल्कुल इस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी है, इस पर बीजेपी का टैग है। ये वो करते हैं जो बीजेपी कह रही है। आप देखिए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। बीजेपी मस्जिदों को ताला लगा रही है, अजान पे बैन लग रही है, मुसलमानों को बिला वजह तंग किया जाता है। क्या हमें शोभा देता है कि हम इस पार्टी में रहेंगे? हमने इसलिए इस पार्टी को अलविदा किया कि हम बांडीपोरा के लोगों के साथ हैं। जम्मू में शदीद बारिशों के नतीजे में भटंडी नाला में अचानक सैलाबी सूरत हाल, कई रिहायशी मकानात को नुकसान। तवी दरिया में बुजुर्ग शहरी बहकर लुकमा आजल। रामबन में शूटिंग स्टोन गिराने के नतीजे में महकमा ट्रैफिक का कांस्टेबल शदीद तौर पर जख्मी। टंगडार में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, अनंतनाग के 3 शहरी लुकमा आजल। बटवनी गांधरबल में बिजली करंट लगने से नौजवान जान बहक और दूसरा जख्मी। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 1221 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी की जानिब रवाना। जम्मू के ज़िले राजौरी में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मौजूदा सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए। बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार काबू न पा सकी, कांग्रेस लीडरान का बयान। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है राजौरी के अंदर रखा था। आप देख रहे हो कि पिछले 1 महीने से लगातार हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हैं श्री भारत सिंह सोलंकी जी की क़यादत में, हमारे स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वकार रसूल साहब और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी क़यादत में हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। इसका मकसद ये है कि एक तो हमारी रियासत जो हमसे छीनी गई 5 अगस्त 2019 को, उसका दर्जा जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए। और दूसरा हमारा था कि जो बेरोज़गारी है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जितना भी पिछले सर्वे के तहत पूरे देश में, पूरे मुल्क में अगर आप देखो सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो यूटी बनाई अब इन्होंने। तो उसके अलावा जितनी महंगाई है यहाँ पे, आज जो खाने पीने की चीज़ें उनके देख लो कि दाम कितने जो है वो बढ़ गए हैं। चाहे आप दालों के दाम देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, आप गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर जो है वो 1000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसी तरीके से जितनी महंगाई है, आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है, गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और जो बिजनेसमैन हमारे हैं, मीडियम क्लास के बिजनेसमैन हैं, वो भी उनका जो पूरा
सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई पहले बेरोजगार होता था तो वो कोई छोटा मोटा कारोबार अपना जो है वो खोलता था, लेकिन आप देख लो कि आज हालत क्या है कि कारोबार पे GST इतना लगा दिया है सरकार ने कि कोई कारोबार भी जो है वो नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो दूसरा ये है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी, यहाँ मिनिस्टर्स के पास कितनी बड़ी पावर थी, यहाँ चीफ मिनिस्टर के पास कितनी पावर थी। अब जो उन्होंने सारी पावर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के LG साहब को दे दी, और जिससे यह है कि एक कांस्टेबल भी जो है वो कोई मिनिस्टर आने वाला या कोई कल को जो चीफ मिनिस्टर है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हालात में पिछले 10 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं है जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और आप अंदाजा लगाओ कि इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है जो हमारा मुल्क है उसके अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई यहाँ चुनी हुई सरकार जो है वो नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का दौर है यहाँ पे, अफसर कोई किसी की बात नहीं सुनता। एक गरीब आदमी जो है, हमारी ओल्ड एज पेंशन आप देख लो, हमारी विडोज पेंशन देख लो, वो चक्कर काटते हैं दफ्तरों के। 6-6 महीने हो गए, इतना पैसा खर्च किया लेकिन आज तक किसी को जो पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है। हैंडीकैप पेंशन है। ये सारी चीज़ों को लेके मैं कहूँगा कि उसके बारे में आज हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो निकाला। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर साथी हैं वो सब यहाँ पे आज मौजूद थे, और उसके बाद ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होता, जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आती। और फिर जो पावर्स दी गई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को सारी पावर्स दी हैं, ये पावर्स वापस नहीं होती, और गरीब यहाँ महंगाई खत्म ना हो। यहाँ मौसमी सरमा के दौरान महफूज और बगैर किसी रुकावट के सफर को यकीनी बनाने के लिए जामिया सहूलियात से लेस जड़मोरा टनल 15 सितंबर तक खोल दी जाएगी। गगनगीर और सोनमर्ग का सफर महज आधे घंटे में तय होगा। वजीर आजम की रहनुमाई से जो तरक्की और खुशहाली हुई उससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार, यकीनी तौर पर जबरदस्त जीत दर्ज करेगी। तरुण चुग। जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को सख्त चैलेंजों का सामना, नकली अदवायात का कंट्रोल, कैंसर का इलाज सस्ता और सिकिम्स की खुद मुख्तारी की बहाली लाजमी। मियां अल्ताफ। आखिर में ये खबर कि गर्मी की शिद्दत के बाइस ज़ायरीन की बड़ी तादाद मदीना से मस्जिद हराम पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 54 लाख से ज़ायद नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।